ओके अभी ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. Thank you for joining with me for this orientation session, and I warmly welcome all of you to your provisional upgradation into third year MBBS. So it's been 1 week since your exams has been finished. So after discussion with principal साहब, we have decided कि आपकी हम online classes start करें. मेरा नाम अब्दुल मुदब्बिर है and I will be heading this department with the name of Pharmacology and Therapeutics. The good thing is that all of you are familiar with this online teaching and learning. Zoom का आप सबको अच्छे से आइडिया होगा. लास्ट ईयर भी आप लोग काफ़ी कुछ करते रहे होंगे. Zoom पे नहीं ना सही तो किसी न किसी और प्लेटफॉर्म पे. Today's session is about orientation, about department, about our policies, rules, teaching methodologies, and few other things. And yes, at the end of session, you can ask any questions, whatever you like, because you will be staying with us for a period of 1 year, inshallah. And I want कि आपका ये जो टाइम हो बहुत ही मेमोरेबल हो और आपको अच्छा भी लगे, इसमें आप लर्निंग भी करें और स्ट्रेस फ्री हो कि आप इसमें कुछ सीखें भी सही. Since you are in third year MBBS now, तो एक चीज़ तो बच्चों क्लियर है कि आप सब इंशाल्लाह एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम से इंटरेक्ट करेंगे. You will have real time experience of examining and handling the patients. Clinical के बहुत टच आना इस साल इंशाल्लाह. And you will feel doctor like इंशाल्लाह. बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये साल और एकदम से बेसिक से चेंज हो के आप प्री क्लिनिकल में आ गए. Pharmacology and pathology, these are the preclinical subjects, neither basic nor clinical, but preclinical. The subjects which prepare you for your clinical practice and clinical performance. So without wasting time, let's start with the few slides which I have prepared for you. Okay. I hope every one of you can see the screen which I have just shared with you. During the lecture, if you have any problem, you can use the option of raise a hand. आपके मोबाइल में कहीं ऑप्शन में आ रहा होगा raise a hand, तो आप उसको यूज कर सकते हैं to interact with me instantly. ओके बच्चों. अच्छा बेटा, सबसे पहले the name of department, we are the people who belong to the department of pharmacology and therapeutics. Short form में हम pharmacology बोलते हैं, but the exact name which will be printed on your DMC, that will be pharmacology and therapeutics. Both are little different things, pharmacology and therapeutics. We will obviously learn inshallah with time. And what is organogram of the department? This is the complete organogram of department. I am Abdul Mudabbir Rehan. Technically, I am assistant professor of pharmacology, but I am heading the department also. So I am your HOD also. We have two types of staff. One is academic and other is the sporting staff. Among academic staff, we have one visiting professor, Dr. Abdul Jabbar Saab, who is associate professor and he is the regular faculty member of National Medical University. But due to shortage of staff at Niji Khan Medical College, he visits us for 3 days in a week. So he is in visiting faculty of our department. And rest of these names, they are the regular members. Dr. Sadia Sabat, she is senior demonstrator. Dr. Saima, Dr. Hina, and Dr. Ghulam Shabir, these are the demonstrators. And we have one pharmacist also, Miss Mara Green. And some we have lab technicians, we have computer operator and other supporting staff also. So this is the little introduction to the Department of Pharmacology. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, अब चूंकि आप लोगों का एक पूरा का पूरा साल चेंज हुआ है, तो आपका प्रोफेशनल एग्जाम का सारे के साथ स्ट्रक्चर भी चेंज होगा. ठीक है. व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोफेशनल एग्जाम? दिस शुड बी क्लियर ऑन योर फर्स्ट डे. व्हाई? बिकॉज बेस्ड अपॉन दिस
structure, you will be preparing your whole subject inshallah. So first of all, you should know what is the structure. So bachcho, broadly classifying, you can follow my pointer. The pharmacology, it comprises of 300 marks in total. अब तक आप जितने भी सब्जेक्ट्स में पेयर होते आए हैं उनके 200 मार्क्स थे या 100 मार्क्स थे, बट दिस इज वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्दो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. अगर आपको इस बारे में किसी ने मिस गाइड किया तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा बच्चों के, इफ आई एम टीचिंग फार्माकोलॉजी ऑन दिस डे, दैट्स बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी. अगर ये इतना ही डिफिकल्ट और ख़राब होता तो बच्चों मैं कभी भी इस सब्जेक्ट को ज्वाइन नहीं करता. आई हैड एन ओपन ऑप्शन टू ज्वाइन एनी बेसिक साइंस सब्जेक्ट अमंग 7 सब्जेक्ट्स. मैं कुछ भी ज्वाइन कर सकता था, बट आई प्रेफर दिस सब्जेक्ट. कुछ तो है इसमें ऐसा, यू विल कम टू नो विद टाइम इंशाल्लाह. इट इज़ द इंटरेस्टिंग मोस्ट सब्जेक्ट ऑफ बेसिक साइंसेज. सो 300 मार्क्स का आपका बच्चों पूरा एग्जाम होगा इंशाल्लाह. तो इसकी फर्दर ब्रेकडाउन है, 150 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा एंड 150 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एंड ऑप्स भी होगा, इंक्लूडिंग द वाइवा. तो थ्योरी के अंदर बच्चों आपका 135 मार्क्स की आपकी स्ट्रेट थ्योरी होगी, रिटन पेपर होगा, और 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे. 15 मार्क्स हैं इस साल. बेसिकली 10% होते हैं जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं. तो 300 का 10% बनता है बच्चों 30. so you have 30 marks of internal assessment in total. Wow, it's a very big figure. 30 मार्क्स से आप बहुत कुछ अचीव करते हैं. आराम से पास भी हो सकते हैं, आराम से फेल भी हो सकते हैं. अल्लाह ना करे कोई फेल हो. आई ऑलवेज प्रे विश कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हों, बहुत अच्छे मार्क्स लें. बट अनफॉर्चुनेटली 2-4 के साथ मिसहैप हो जाता है. इंशाल्लाह नहीं होगा इस साल. आई हैव वेरी गुड फीडबैक अबाउट योर क्लास. बहुत अच्छा बताया मुझे आपके सीनियर्स ने कि बहुत ही एग्जाम्पलरी क्लास है. तो आई होप कि आप वैसा ही परफॉर्म करें और इंटरेक्ट करें जैसा आपके बारे में मुझे बताया गया है. आल्दो मेरे बारे में आपको बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस मिली होंगी, बहुत डिफरेंट ओपिनियन मिली होंगी. किसी ने क्या बताया होगा, किसी ने क्या बताया होगा. तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. व्हाई डोंट यू ट्राई योरसेल्फ. खुद ही टेस्ट करो ना मुझे कि मैं कैसा बंदा हूँ और वगैरह वगैरह. इंशाल्लाह इन अ वीक यू विल नो एवरीथिंग अबाउट मी. Your many speculation will prove wrong, some may prove right, but try it yourself. तो बच्चों बात हो रही थी इंटरनल असेसमेंट की. इसके बच्चों 30 नंबर हैं, बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये. लेकिन द गुड थिंग इज कि मैं इंटरनल असेसमेंट टोटली बच्चों पे छोड़ देता हूँ. दिस इज नॉट इंटरनल असेसमेंट, दिस इज योर पर्सनल असेसमेंट. आप इसमें 30 में से 30 पे स्कोर कर सकते हैं. आई ऑलवेज एंड यूजुअली डिस्प्ले द इंटरनल असेसमेंट एट द एंड ऑफ ईयर. लास्ट टाइम नहीं कर सका, बट आई ऑलवेज डिस्प्ले द इंटरनल असेसमेंट ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने कितने मार्क्स जो है स्कोर किए. मेरे में कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं खुद पसंद करता हूँ. एक सबसे अच्छी बात मेरे में ये है कि मैं किसी बच्चे के साथ ना पर्सनल नहीं होता, ठीक है. जो बच्चा जितना परफॉर्म करता है मैं उसको उसकी परफॉर्मेंस का फुल बाय फुल उसको मैं क्रेडिट देता हूँ. मैं कभी भी किसी बच्चे का किसी भी पर्सनल रीजन से, पहले तो मैं किसी के साथ पर्सनल होता ही नहीं. लेकिन चलें, अगर आप सपोज कर लें कि लेट्स सपोज कोई बच्चा मेरे साथ पर्सनल लेवल तक मतलब इन्वॉल्व हो गया, मतलब उसने कोई रूल्स ब्रेक किए, कोई उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कमेटी के एक्शन हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं किसी बच्चे का एकेडमिकली असेसमेंट इन चीज़ों पे नहीं करता. मैं पूरी की पूरी, प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड. तो मैं आज पहले दिन बच्चों आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को बेशक रिकॉर्ड कर लें. मैं किसी बच्चे का किसी उसके रेशियल बेसिस पे या उसके कैरेक्टर बेसिस पे या उसकी किसी भी फैक्टर को बेस बना के उसकी वाइवा में असेसमेंट नहीं करता, और ना ही उसकी इंटरनल असेसमेंट के अंदर कोई उसको मतलब ऊपर नीचे करता हूँ. तो इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आप जितना परफॉर्म करेंगे आपको उतना ही मिलेगा. इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है बच्चों कि मैं जो बच्चा फिर इंटरनल असेसमेंट में फेल हो रहा होता है ना, मैं उसको भी कोई एज नहीं देता. इवन 30 में से कुछ बच्चे 1 मार्क भी स्कोर करते हैं, 2 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, 0 कोई नहीं करता. इक्का दुक्का ले ही जाते हो आप. तो मैं दोनों तरफ से फिर स्ट्रेट हूँ, ठीक है. मैं किसी के साथ ज्यादती भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने रूल्स के साथ भी ज्यादती नहीं होने देता. आप बच्चों जितना परफॉर्म करेंगे ना इंटरनल असेसमेंट में, आपके मैं उतने ही मार्क्स दूंगा इंशाल्लाह, और कोई ज्यादती नहीं होगी, ठीक है. यू कैन मार्क दीज वर्ड्स. तो ये 30 नंबर बच्चों, दीज आर नॉट इंटरनल असेसमेंट विच इज इन माई हैंड्स, दिस इज द पर्सनल असेसमेंट विच इज इन योर हैंड्स. यू कैन स्कोर फुल बाय फुल मार्क्स इंशाल्लाह.
तो उन जो आपके 30 मार्क्स हैं उसमें से 15 मार्क्स आपको मिलते हैं बच्चों थ्योरी के अंदर और 15 मार्क्स आपको दिए जाते हैं जी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग वाइवा। तो 65 आपके एमसीक्यूज होंगे और आपके 10 एससीक्यूज होंगे। ईच एससीक्यू क्वेश्चन विल कैरी 7 मार्क्स। तो 70 के आपके होंगे एससीक्यूज और 65 के आपके होंगे बच्चों एमसीक्यूज। एग्रीगेट विल बी 135 मार्क्स एंड 15 in internal assessment you will score 150 marks in theory। आगे चलते हैं। This is the breakdown of 150 marks of oral and practical examination। इसमें बच्चों लेफ्ट साइड पे आप देखें 70 मार्क्स आपके हॉस्पी के होते हैं। 70 मार्क्स, उन 70 में से फिर आपके 2 टाइप ऑफ स्टेशन होते हैं। अभी आपको शायद समझ ना आए लेकिन चलें। 35 के आपके 7 स्टेशन होते हैं, 5 मार्क्स ऑफ ईच स्टेशन। और आपके जो 2 और स्टेशन होते हैं विच आर ऑब्जर्व स्टेशन, जहाँ पे आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है, उनमें से एक 15 मार्क्स का स्टेशन में होता है और एक 20 मार्क्स का स्टेशन होता है। ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के 5 मार्क्स होते हैं और इसी तरह आपके 60 मार्क्स होते हैं मेजर वाइवा के। उसमें से 30 मार्क्स आपके इंटरनल के पास होते हैं और 30 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के पास होते हैं। एंड टू द एक्सट्रीम राइट एज यू कैन सी इंटरनल असेसमेंट इट कैरीज 15 मार्क्स। So this is the brief breakdown of the practical 150 marks of the oral and practical examination। So total बच्चों आपके पास 300 मार्क्स होते हैं। तो 75 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं थ्योरी में, 75 चाहिए होते हैं आपको वाइवा के अंदर, और इन एग्रीगेट आपके एटलीस्ट मिनिमम 150 मार्क्स होने चाहिए टू क्लियर दिस फार्माकोलॉजी। अच्छा बच्चों, टाइम टेबल। सबसे पहला क्वेश्चन आजकल के हिसाब से, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो टाइम टेबल क्या होगा जी हमारा ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन डायरेक्शन और whenever we will be teaching you on कैंपस। तो कैंपस का टाइम टेबल तो भी मेरे पास पहुंचा नहीं है। वो वैसे आपको पता ही है कि मॉर्निंग में 3 लेक्चर होते हैं। तो अब जो ऑनलाइन सेशन है बेटा, इसके अंदर आपसे अगर पूछने लग जाएं तो हर बंदा अपने हिसाब से बताएगा कि मैं तो फलां टाइम पे उठता हूँ, मेरे तो रूटीन ही कुछ और है, मैं तो ये मैं तो वो। उसका सिंपल सा हल जो हम ऑप्ट करते हैं वो ये है कि जो हमारा अप्रूव्ड टीचिंग टाइम है दैट इज फ्रॉम 8 to 2। ठीक है। तो आपके जो लेक्चर्स होंगे फार्माकोलॉजी के, दे विल बी मोस्ट प्रोबेबली बी ड्यूरिंग दिस 6 आवर विंडो। ठीक है। मतलब 8 से पहले नहीं होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, और दोपहर को आफ्टरनून में 2 बजे के बाद कोई लेक्चर नहीं होगा आपका। तो ड्यूरिंग दिस विंडो ऑफ 8 to 2 वी विल बी टीचिंग यू एट सम टाइम इंशाल्लाह। वो देख लेंगे कब करना है। बाकी डिपार्टमेंट से भी कोलैबोरेट करना है तो आपका एक ऑनलाइन का भी टाइम टेबल बन जाएगा इंशाल्लाह, एंड वी विल शेयर विद यू वंस इट्स रेडी। ओके बेटा, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को यहाँ गाइड करना चाहूंगा, सबसे पहली बात, ठीक है, दैट इज अबाउट डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी। बेटा मैं क्लियरली आपको समझाना चाहता हूँ कि इन 3 चीजों पे तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। आप हॉस्टल में हैं, आप घर में हैं, आप जो मर्जी कप डालें, आप जो मर्जी करें, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बट वंस यू आर एट दिस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन है चाहे ऑन कैंपस है, वहाँ पे बच्चों आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिहेव करना है। ठीक है। कोई आपने मिसबिहेव नहीं करना। एंड देयर आर टू अदर थिंग, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन टाइम मैनेजमेंट। आपने बच्चों टाइम पे आना है हर चीज के लिए, और टाइम पे ही आपने सारे काम करने, जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाए, जो भी टास्क दिए जाए। तो मैं पंक्चुअलिटी को बहुत फॉलो भी करता हूँ, और मैं इसको ना सिर्फ लाइक करता हूँ बल्कि मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। ठीक है। एंड रेगुलराइजेशन, इसका मतलब ये है बच्चे के पंक्चुअल तो होना है लेकिन फिर आपने उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन आप पंक्चुअल टाइमिंग में, उसके बाद फिर आप 15 दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन आ गए, फिर 5 दिन गायब रहे। सो इसको आपने रेगुलर रखना है। दिस शुड नॉट बी ऑन इरेगुलर बेसिस। सो प्लीज बी रेगुलर, बी पंक्चुअल एंड बी डिसिप्लिन। दिस इज द की to everything, and at least to have a good time in pharmacology department, please at least maintain these 3 things। सब्जेक्ट तो पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, बाकी एटलीस्ट आपकी ये चीजें ठीक होनी चाहिए। व्हाट इज द ड्रेस कोड? ड्रेस कोड बच्चों ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डिसाइड किया है और हमारे कॉलेज ने डिसाइड किया है। इसका प्रॉपरली नोटिफिकेशन भी है मेरे पास, आई विल शेयर इंशाल्लाह। सो व्हाट ड्रेस कोड के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में जो चीज मेंशन थी वो ये थी बच्चों, दैट फॉलोइंग दीज आइटम्स दे शुड नॉट बी अलाउड इन द क्लास और ऑन द कैंपस, which include jeans, shorts, t-shirts, chappal, slippers, sandals and necktie।
तो ये चीजें आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा, एटलीस्ट फार्माकोलॉजी में अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आप आए सुबह कैंपस पे, लेक्चर लें, जब फार्मा का लेक्चर हो तो जल्दी से भाग के आप चेंज करके दोबारा आ जाएं, और हमारे लेक्चर के बाद आप दोबारा से चेंज कर लें। आई विल नॉट माइंड, बट प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस टेस्ट कोड। अटेंडेंस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट योर लेवल, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव अटेंडेंस, ठीक है। यूजुअली क्या होता है जी के डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि जी आपकी प्रैक्टिकल में भी अलग से 75 हो, आपकी ट्यूटोरियल में भी अलग से 75 हो, और आपकी लेक्चर में अलग से 75 हो। हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं कि लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स और ट्यूटोरियल, इन सबको मिला के एट द एंड ऑफ ईयर योर अटेंडेंस शुड बी अबव 75। आपको प्रैक्टिकल अच्छे नहीं लगते, छोड़ दो, डजंट मैटर। ट्यूटोरियल अच्छे नहीं लगते, छोड़ दो, बट जब एंड पे अटेंडेंस आपकी कैलकुलेट हो ना बच्चों, दैट शुड बी अबव 75%। तो इस चीज को आपने अपने पल्ले बांध लेना। और मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, आई हेट ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो जिसकी अटेंडेंस 74.9999 भी होगी ना बेटा, वो भी ऐसा ही है कि उसकी अटेंडेंस 0 है, ठीक है। तो 75 मीन बच्चों 75, इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। ऊपर चलेगा चलो, इससे नीचे नहीं चलेगा। तो आपने अटेंडेंस अपने 75% मिनिमम और अबव ये रखनी है इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर। आई होप वी आर क्लियर सो फार। नेक्स्ट इज द यस, व्हाट इज द अटेंडेंस पॉलिसी फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स। हमारे पास जब बच्चा आता है थर्ड ईयर में, तो बच्चा एकदम स्विच ओवर करता है, मतलब एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम से एकदम से न्यू डिपार्टमेंट्स में आता है, न्यू स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग में आता है। आते ही बच्चा कहता है जी, मेजोरिटी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे तो सप्ली है, लास्ट टाइम भी हम काफी परेशान हुए। 100 की स्ट्रेंथ होती है आपकी, उसमें से लास्ट टाइम 35 के 36 बच्चों की सप्ली थी। मतलब मेरे लिए बहुत टफ टाइम होता है कि 36 बच्चे, और जो जिनकी सप्ली आती है वो सप्ली की रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। यार ऐसे नहीं चलता। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कोट कर दूं, आई फील द पेन ऑफ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, व्हाई, बिकॉज मेरी भी बच्चों सप्ली थी सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में। अब मैं पेन फील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने कैसे सरवाइव किया, सप्ली भी साथ में दी, अटेंडेंस भी अपनी मेंटेन की, और कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज करके फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड प्रॉफ पे निकाला। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आप ये आके बहाना करते हो कि सर सप्ली थी, तो मतलब प्लीज ये मुझे नहीं कहना, आई नो एवरीथिंग, पहली बात। दूसरी बात बेटा, देखो सप्ली डॉक्टरों की ही आती है, ठीक है, अब औरों की तो नहीं ना आएगी। अब आप एमबीबीएस में आए हो बेटा, सप्ली तो मतलब आ जाती है, उसमें कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं होती। सप्ली के अंदर जो बच्चे को दुख होता है ना, वो सिर्फ इस बात का होता है कि उसके जो ये 3-4 महीने थे ना, जिसके अंदर उसने बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाना होता, वो उसके जाया होते हैं। अदरवाइज आपका ऐसा मोटिव नहीं होता कि हाय काश सप्ली ना आती तो पता नहीं मैं कैसे कैसे इस साल पढ़ता, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आप अपने आराम को जो है ना वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सप्ली से फारिग होते हैं तब समर वेकेशन आ जाती हैं, उसके फौरन फौरन बाद फिर आपका मतलब सेंड अप, प्रॉप, इस तरह की चीजें मतलब रूटीन में स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ दुख आप लोगों को वही होता है, ठीक है। तो मैं गाइड भी कर रहा हूँ आपको कि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे अगर आप में से किसी की सेकंड प्रॉब्लम सप्ली आती है, तो उसको आपने दिल पे नहीं लेना, अपने थर्ड भी साथ चलाएं, अपनी सप्ली को भी साथ ही क्लियर करें, हो जाती है आराम से क्लियर। डिप्रेस नहीं होना, आ जाती है सप्ली, कोई ऐसा इशू नहीं। तो दूसरा ये कि यार कभी भी ना मुझे ये एक्सक्यूज ना देना कि सर सप्ली थी, ये यार प्लीज मेरे सामने ये मतलब रोने वाला मुंह बना के ना सप्ली थी। आप जब ये कहते हैं ना कि सर सप्ली थी, इसका मतलब होता है कि आप अपने मुंह से ये एडमिट कर रहे हैं कि सर मैं तो हूं ही फारग, मेरे तो पहले भी सप्ली थी, और अब आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो मुझे तो वो भी नहीं आता। तो बाई दिस व्हाट आई गेट इज कि आप यही कहना चाहते हैं कि सर मेरी तो सप्ली थी, तो उसे होने भी सप्ली ला दो। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है भाई। अगर सप्ली थी तो आप उसको बेटा साइड पे करो। आप कहो कि सर सप्ली तो गलत थी, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ के आया हूँ, सुन के देखिए मुझसे, मैं तो कमाल है सर, मैं तो पता नहीं क्यों मेरी 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 तो सर सप्ली गलत आई थी। तो आप ये प्रूव करो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, रादर देन गेटिंग क्रेडिट ऑफ योर सप्ली। भाई सप्ली का क्रेडिट कौन लेता है यार,
अपनी गलती का क्रेडिट नहीं लेते, उसको छुपाते हैं और आगे अच्छा परफॉर्म करते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि यार मतलब इतना अच्छा कैसे पढ़ के आए हो, और आप कहें कि सर मेरी तो सप्ली भी थी, देखिए मैंने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप ऐसा बोलें मुझे, ठीक है बेटा। सो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारी सप्ली आ गई सेकंड ईयर में, सो व्हाट विल बी द पॉलिसी ऑफ अटेंडेंस फॉर अस। तो बेटा ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी बेटा वही है 75%, उसमें 25% की जो रिलैक्सेशन है आपने उसमें ही एडजस्ट करना है अपनी सप्ली को, अल्लाह ना करे अगर आती है तो 25% बेटा बहुत रिलैक्सेशन होती है। मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको कि 25 इज 1/4, ठीक है। अगर आपका 4 महीने का सेशन होता है तो इसका मतलब है कि अगर आप 3 महीने रेगुलर अटेंड करते हैं तो आप 1 महीना पूरा ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका सेशन 8 मंथ्स का है तो यूजली हमारा सेशन 9 to 10 मंथ्स का होता है। अगर हमारा सेशन 9 मंथ्स का होगा, चले 8 मंथ्स का भी होगा, तो आप 8 मंथ्स के सेशन में अगर 6 मंथ्स 100% अटेंडेंस रखते हैं तो आप अगले 2 महीने पूरे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप अभी से रेगुलर रहें, अल्लाह ना करे अगर सप्ली आती है आपकी तो आप यार मैक्सिमम आप साथ साथ पढ़ते रहें, अपना क्लासें अटेंड करें और रात को पढ़ें, दोपहर में, शाम को। एंड पे 20 डेज 30 डेज इवन आप 1 महीने का भी अगर टोटल ऑफ लेते हैं तो भी आप अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, हो सकती है अटेंडेंस मेंटेन। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। so far we have no policy for supplementary students. Every student will have to maintain the attendance above 75। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी और इसके ऊपर आपने मुझसे कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं करना, ठीक है। Assessment. So we will teach you pharmacology in the best possible way इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह नोट करेंगे कि हम आप पे बहुत मेहनत करेंगे, हर लिहाज से मेहनत करेंगे, टीचिंग में भी, रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने में भी, लर्निंग इन्वायरमेंट भी देंगे इंशाल्लाह आपको, ट्रू गाइडेंस भी देंगे आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। तो जितनी बेटा हम इनपुट देंगे तो उतनी ही हम आउटपुट भी लेते हैं फिर, या एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि बच्चे आउटपुट दें। तो असेसमेंट को हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट रखते हैं। सो व्हाट विल बी द डिफरेंट मोड्स ऑफ असेसमेंट, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट्स, यस, एक साथ थोड़ी ना होंगी, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे होंगी। These are different types of assessments which we will be practicing इंशाल्लाह। हो सकता है हम सारी प्रैक्टिस ना कर सकें, ठीक है। क्लास टेस्ट, यस, अप्रोक्सीमेटली आपके 10 क्लास टेस्ट होंगे, ठीक है। क्विजेस, क्विज क्या होता है बेटा, आप लोग दे ही चुके होंगे। क्विज एक शॉर्ट सा टेस्ट होता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है या शॉर्ट एससीक्यूज भी हो सकते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली आपके 50 क्विज होंगे, लेकिन ये इतने छोटे छोटे होंगे, मतलब 10 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज, तो ये आपके 50 तक चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्विज जो है बेटा, चलें आगे बात करते हैं। फिर बेटा आपके टर्म एग्जाम होते हैं, कॉलेज की पॉलिसी है। हाँ, रूटीन में आपकी 3 टर्म्स होती हैं। लास्ट टाइम तो शायद 1 टर्म हुई थी या पता नहीं 2 हुई थी, मुझे याद नहीं है। मतलब चलिए 2 लगा लें आप। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट वी कैन प्रैक्टिस इज द वाइवास। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट बैच था G8 का था, उसमें हम कोई वाइवा नहीं ले सके, ठीक है, क्योंकि वाइवा के लिए ऑन कैंपस होना बहुत जरूरी होता है। 1-to-1 इंटरेक्शन इज preferred way of taking viva and even preferred way to give viva. Then stand up आपका बेटा एक ही होगा, obviously you know it। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं। अब इसमें से फ्लक्चुएशन होंगी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19, कि कितना टाइम हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कितना टाइम हम ऑफलाइन रहते हैं या ऑन कैंपस रहते हैं, वी डोंट नो येट, बट यस वी विल बी प्रैक्टिसिंग मेनी टाइप्स इंशाल्लाह। और ये नंबर जो है ये भी वेरी कर सकता है, हो सकता है आपके क्विज ही हूँ सारे, आपके 100 क्विज हो, आपको क्लास टेस्ट कोई ना हो, आपकी टर्म भी शायद कोई ना हो, वाइवा भी कोई ना हो आपका। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं एज पर अ सिचुएशन। But these are the 5 major types of assessment tools which we will be using inshallah. What is the DBAR policy for assessment exam? अच्छा बेटा, चलें ये तो टाइम के साथ ही बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तो ऑन कैंपस हम चल ही नहीं रहे, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता, छोड़ देता हूँ। दिस इज द बेसिकली मेथड ऑफ DBAR पॉलिसी, बट इसको हम अब स्किप कर देते हैं। इवैल्यूएशन को भी स्किप कर देते हैं, इंटरनल असेसमेंट पे आते हैं जो आप लोगों का फेवरेट है।
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारी इंटरनल असेसमेंट फेयर हो. यस, इट विल बी फेयर इंशाल्लाह, बट उसके लिए आपको बच्चों पता होना चाहिए कि इंटरनल असेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट एंड यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर इंटरनल असेसमेंट रादर पर्सनल असेसमेंट. सो बेटा 30 मार्क्स की होती है हमारे पास. ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस के हमारे पास 5 मार्क्स हैं. सो बेटा दीज 5 मार्क्स दे आर इन योर हैंड. आप अपने जो है अटेंडेंस को मैक्सिमम रखें, यू विल गेट 5 मार्क्स आउट ऑफ 5. ये तो मतलब कोई इशू ही नहीं है, इसमें इशू होना भी नहीं चाहिए. ठीक है बेटा. देन वी हैव क्लास टेस्ट, उसके 10 मार्क्स है हमारे पास. देन वी हैव 3 टर्म्स, अगर हुई तो उनके 6 मार्क्स होंगे. देन वी हैव स्टैंड अप, अकेले स्टैंड अप के 4 मार्क्स होते हैं. एंड देन वी हैव क्विज़ेस, उनके बेटा 10 मार्क्स होते हैं. अच्छा, अब मैं ये बता दूं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको क्लास टेस्ट की. लेट्स सपोज आपके 10 क्लास टेस्ट हुए. ठीक है, हर क्लास टेस्ट के आपके 50 मार्क्स थे फॉर एग्जाम्पल. तो आपके सब क्लास टेस्ट के कितने मार्क्स हो गए? 500. 10 क्लास टेस्ट, 50 मार्क ईच, 500. हम इन सब क्लास टेस्ट के मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, हर बच्चे के मार्क्स हर टेस्ट के. हम पास फेल पे अटेंडेंस नहीं बनाते, चाहे बच्चा पास है चाहे फेल है, डजंट मैटर. तो हम बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब जब हम आपके 10 के 10 टेस्ट के मार्क को कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे. जो हाईएस्ट टॉपर होगा, लेट्स सपोज हमारे क्लास में एक बच्चा है, असलम है. लेट्स सपोज असलम ने जी 500 में से नंबर लिए हैं जी 400, 400 मार्क्स. इससे ऊपर किसी की नहीं टॉपर है. तो इस 400 मार्क्स के अगेंस्ट हम उसको क्लास टेस्ट की असेसमेंट देंगे. अब जिस बच्चे के टॉप मार्क्स हैं 400 क्लास में, सारे क्लास टेस्ट में, उसको बेटा हम 10 में से 10 मार्क्स दे देंगे. आपके बेटा 10 नंबर ही हैं, कोई कट डाउन नहीं होगा, कोई पास फेल नहीं होगा. अब वो जिस बच्चे के 400 मार्क्स है ना, मे बी उसके कुछ 3 क्लास टेस्ट फेल हूँ, डजंट बॉदर अस, डजंट मैटर टू अस. हम एंड पे सारे क्लास टेस्ट का एग्रीगेट निकालते हैं. आपके अगर टॉप पे मार्क्स हैं पूरी क्लास में, हम आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे देंगे. और आपको हम ऑनर भी करेंगे. ऑनर कैसे करेंगे कि सिंस यू आर टॉपर, यू हैव स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन ऑल द क्लास टेस्ट, आपके क्लास टेस्ट की बेसिस पे बाकी क्लास को मार्क्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एक और बच्चा है जी, उसके हैं जी सब क्लास टेस्ट में मिला के 200 नंबर, 200 मार्क्स. अब टॉपर के हैं 400 और एक और बच्चे के हैं 200. तो हम टॉपर के नंबर से कंपेयर करते हैं. बेसिकली ये एक टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड एज परसेंटाइल. ठीक है. अब परसेंटाइल में क्या होता है जी कि टॉपर के 400 हैं और दूसरे एक स्टूडेंट के टॉपर से 50% कम है, मतलब कितने हैं? 200 हैं. तो उसको हम टॉपर की असेसमेंट का 50% देंगे. दैट स्टूडेंट विल गेट 5 मार्क्स. अब जिस बच्चे के 100 मार्क्स हैं, तो टॉपर के 400 हैं, तो 100 वाले के ऑटोमेटिकली 1/4 दिए जाएंगे, कितने? 2.5 मार्क्स एंड सो ऑन. तो बेटा असेसमेंट के अंदर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपका क्लास टेस्ट पास है फेल है, क्विज आपका पास है फेल है, टर्म पास है फेल है, डजंट मैटर. आपका अगर टेस्ट फेल है, जितने नंबर हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ असेसमेंट के नंबर जरूर देंगे. 0.3 मार्क्स दे दें, 0.9 मार्क्स दे दें, मार्क्स जरूर मिलेंगे बेटा. हम आपके नंबर ज़ाया नहीं करेंगे. आपका एक टेस्ट फेल है, कोई मसला नहीं है, आप आगे के 2 टेस्टों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो, अपनी डेफिशिएंसीज को आप ओवरकम कर लो, तो आपके पास एक चांस होता है कि आप एक टेस्ट फेल करके 2 में टॉप कर लो, आप फिर आगे आ जाओ. So we will be continuously providing you with good opportunities to make your assessment better and better. So this is the way how we calculate internal assessment. और internal assessment बेटा इस पे तो नो कॉम्प्रोमाइज है, मैं किसी बच्चे की चेंज नहीं करता. मुझे याद है कि G7 में 2 बच्चों की डिस्टिंक्शन रह गई थी 4 या 5 नंबर से. एक था सजावल और एक लड़की थी अक्सा जावेद. अब मुझे आज तक दुख है इस बात का. एक के असेसमेंट में थे 23 मार्क्स और दूसरे के आई डोंट रिमेम्बर. बट बेटा उनको 4 या 5 नंबर चाहिए थे. मुझे दुख बहुत इस बात का, लेकिन वो भी काफ़ी डिप्रेस थे बेचारे. अक्सा तो खास तौर पर बहुत डिप्रेस थी कि सर मेरी जो है वो डिस्टिंक्शन आ जानी थी, 4 या 5 नंबर का डिफरेंस था, आप अगर दे देते मार्क्स. मैंने बेटा देखिए मार्क्स मैं दे देता, लेकिन ये इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, सारा साल पढ़ते रहे हैं, रेगुलरली क्लासेस अटेंड किए हैं, क्लास टेस्ट में अपेयर हुए हैं, सब कुछ किया है. उनके नंबर भी आपके बराबर हों, तो ये उनके साथ इनजस्टिस है. और मैंने सबसे पहले बात की थी कि मैं इनजस्टिस से बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, ना अपने एंड पे ना स्टूडेंट के एंड पे. जो जितना पढ़ेगा
असेसमेंट उसको पूरी मिलेगी बेटा। असेसमेंट के अंदर कोई इश्यू ही नहीं है कि आपका किसी बेसिस पे मार्क्स ज्यादा किया जाए या कम किया जाए, कोई कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज इंशाल्लाह नहीं आएगी। सो स्टार्ट वर्किंग एज पर दिस पाई चार्ट। Teaching material, yes, we will keep providing all sort of teaching materials. Academic performers, अभी तो बेटा आप कैंपस पे नहीं है, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको एकेडमिक परफॉर्मर दे देंगे। 250 का एक कार्ड मिलेगा आपको प्रॉपर, ठीक है, और उसको रिसीव करने के बाद आपने उसको फिलअप करके विद इन 1 वीक जो आपको डेडलाइन देंगे आपने सबमिट करवाना होगा। देन व्हाट इज द एडमिशन पॉलिसी फॉर एनुअल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। As per UHS guidelines बेटा, this is the policy for your final examination. अगर आप इस पॉलिसी को फुलफिल नहीं करेंगे then I will not send your admission in your annual examination. जो मर्जी हो जाए बेटा, इस पे भी नो कम्प्रोमाइज। जो पॉलिसी है बेटा वो पॉलिसी है। व्हाट इज द पॉलिसी? योर क्यूमुलेटिव अटेंडेंस शुड बी कंप्लीट। आपकी अटेंडेंस बेटा मिनिमम 75% से ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बेटा मैंने एडमिशन नहीं भेजना। अब की बार इंस्ट्रक्शंस थे यूनिवर्सिटी की तरफ से ड्यू टू कोविड, अब की बार भेज दिया था हमने, आगे नहीं भेजेंगे। जो मर्जी हो जाए बेटा, अटेंडेंस पे नो कम्प्रोमाइज। योर स्टैंड अप शुड बी पास। इस बात को तो बेटा पल्ले बांध दो, ये तो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है यूएचएस के प्रोस्पेक्टस में कि जिस बच्चे का एक भी स्टैंड अप फेल हो उसका आपने एडमिशन नहीं भेजना। तो बेटा अगर आपका स्टैंड अप सिर्फ फार्मा का फेल है तो मैं तो बेटा सीधा सा नो कहता हूँ। प्रिंसिपल साहब को भी नो कहता हूँ, यूनिवर्सिटी को भी नो कहता हूँ कि ना, जिस बच्चे का स्टैंड अप फेल है वो बच्चा मोस्ट लाइकली फेल ही होगा, तो इसलिए बेटा मैं तो एडमिशन नहीं भेजूंगा। And the third and the last criteria is that your internal assessment should be at least 15 or above. ये फेल नहीं होनी चाहिए बेटा, 30 में से 15 नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, और ये तीनों कंडीशंस आपके फुलफिल होनी चाहिए। अटेंडेंस भी पूरी हो, स्टैंड अप भी पास हो, और इंटरनल असेसमेंट भी बेटा आपकी अच्छी हो। Yes, in that condition we will send your final admission, otherwise you can stay with us. We will have nice time inshallah if you like us and if you like my department. अब तक की डिस्कशन से मुझे लगता नहीं कि आप मुझे ज्यादा पसंद कर रहे होंगे, बट बेटा कोई बात नहीं, एक साल है, गुजारा करो, आप भी मैं भी, आप इंशाल्लाह पास होकर चले जाओगे और मैं और बच्चे ले लूंगा। So learning environment, there are two types of learning environment. One is real, one is virtual. Right now we are communicating and learning with the help of virtual learning environment, this Zoom. Okay बेटा, just for information, रियल जो हमारे पास हैं, आपके पास लेक्चर हॉल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, ट्यूटोरियल रूम्स हैं, वी हैव लाइब्रेरी, हॉस्टल रूम में भी आप पढ़ सकते हैं, रीडिंग रूम में पढ़ सकते हैं अगर आपके पास हॉस्टल में है तो। दीज आर योर रियल टाइम लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड आई विल प्रोवाइड यू विद 3 वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स। वन इज जूम जो आप अभी देख रहे हैं, अदर इज एडमोडो, वो भी आप देख रहे हैं बेटा अभी, द लास्ट वन इज सॉक्रेटिव, इस पे आपकी इंशाल्लाह काफी क्विज़ और असेसमेंट्स होंगी इंशाल्लाह। So these are 3 virtual learning environments. बेटा सबसे पहले आते हैं एडमोडो पे। इसका कोड मैंने आपसे शेयर कर लिया था, काफी बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके होंगे। एडमोडो इज जस्ट लाइक फेसबुक। फेसबुक सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होता है बेटा, बट ये जो एडमोडो है इस पे हम एकेडमिकली चीजें शेयर करते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है दैट इज जस्ट लाइक फेसबुक। इस पे एक टीचर होता है, बाकी सारे उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, और टीचर जो है उसमें कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू पिक्चर्स, टेबल्स, लेक्चर्स, बुक्स, all sort of notifications, results, attendance, internal assessment, any other notification, हर चीज़ बेटा मैं पर्सनली इंशाल्लाह शेयर करूँगा एडमोडो के ऊपर। Why on एडमोडो? बिकॉज एडमोडो के ऊपर सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है और विद टाइम, और एक आपका ना रिकॉर्ड बन जाता है, जैसे फेसबुक का होता है ना, पूरा एक टाइम मैनेजमेंट होती है। व्हाट्सएप के अंदर भी मैं चीजें शेयर करूंगा, लेकिन कम करूंगा बेटा, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर रिलायबिलिटी नहीं है ना। फोन गुम हो गया, व्हाट्सएप आपका खराब हो गया, करप्ट हो गया, मैसेज डिलीट हो गया, तो कोई आपके पास प्रूफ नहीं होता। बट एडमोडो के ऊपर जस्ट लाइक फेसबुक आपकी हर पोस्ट पड़ी होती है, और आप बैक इन टाइम जाके किसी भी चीज को वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसको आप देख भी सकते हैं। सो आई विल प्रेफर दिस फोरम एडमोडो फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कशंस एंड शेयरिंग। और आपके क्विजेस भी एडमोडो पे होंगे काफी। और एडमोडो का सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा है आज तक का, वो ये है कि ये आपकी इंटरनल असेसमेंट ऑटो कैलकुलेट करता है, हर चीज खुद ही बना के देता है बेटा, कोई एरर नहीं आता।
we practice technology and we incorporate technology more as compared to the humans, because technology से error का chance कम होता है, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल वे में, कंसाइज वे में, कॉम्पैक्ट वे में आपके सामने आ जाती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, टाइम बच जाता है इससे आपका। ओके, तो आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि आप बेटा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फोन्स में और इस कोड को यूज़ करके आप एज ए स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन फ्यूचर अगर आप एडमोडो का पासवर्ड भूल जाएं, मोबाइल चेंज करें या कोई और रीज़न हो जाती है, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो आपने अपना नया अकाउंट जनरेट नहीं करना। आपने सेम अकाउंट से सेम यूज़र नेम और ईमेल जो भी आपने एंटर किया होता है और सेम पासवर्ड को एंटर करके आपने वहाँ से अपना अकाउंट रिट्रीव करना है। अगर आपको अपना यूज़र नेम भूल जाए, आपको अपना पासवर्ड भूल जाए, तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, तो मैं सेटिंग में जाके आपका पासवर्ड भी आपको नया बना के दूंगा और आपको यूज़र नेम भी बता दूंगा। ठीक है, आपने नया अकाउंट जनरेट नहीं करना। वाई? बिकॉज देखें, आप 3 महीने तक एक अकाउंट यूज़ करते रहे, तो आपके जितने क्विज हुए हैं, जो आपके इंटरनल असेसमेंट कैलकुलेट हुई है, वो उस अकाउंट में होगी सारी। आप अब नया अकाउंट बनाते हैं 3 महीने के बाद, तो आपकी नई एक्टिविटी स्टार्ट होगी और आपकी पिछली जो इंटरनल असेसमेंट है वो उसमें एडअप नहीं होगी, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। सो ऑलवेज यूज सिंगल एडमोडो अकाउंट। कोई उसमें इशू होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, वो इंशाल्लाह हम ठीक करके आपका वही अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। वर्चुअल लर्निंग, जूम देख रहे हैं आप बेटा? अच्छा, जूम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। अब जूम आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेट करता है। अभी मैं इस लेक्चर की अटेंडेंस आपके साथ शेयर करूंगा अभी लेक्चर के बाद इंशाल्लाह। अब अटेंडेंस का क्या रूल होगा मेरा बेटा? बेटा अटेंडेंस का ये है कि अगर बस ये है कि मैं 10 मिनट्स की रिलैक्सेशन देता हूँ। जितना भी सेशन होगा ना हमारा एक्टिव टाइम, लेट्स सपोज आज के सेशन का हमारा एक्टिव टाइम है 60 मिनट्स, तो जो बच्चा 50 मिनट्स तक ऑनलाइन रह के लेक्चर को अटेंड करता रहा, उसकी अटेंडेंस प्लस काउंट होगी, वो अटेंडेंस हम काउंट करेंगे। जिसकी 10 मिनट्स से ज़्यादा का गैप हुआ, किसी ने लेट ज्वाइन किया या कोई बच्चा बहुत जल्दी छोड़ के चला गया हमारे इस फोरम को, तो उसकी हम फिर एब्सेंट लगाएंगे, सिर्फ 10 मिनट्स का मार्जिन देंगे। ठीक है, 90% जो है आपने लेक्चर को अटेंड करना है एक्टिवली, और अटेंडेंस जो है 100 फिर कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली। अब जूम का जो भी लेक्चर वो करेगा, उसका जो लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर दिया करूंगा हर लेक्चर से पहले इंशाल्लाह। तो आपने उस लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन करना है। वो जो लिंक है बेटा, वो 5 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर एक्टिवेट होगा। उससे पहले आप क्लिक करेंगे तो आपका वो मतलब लेक्चर में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं हो सकेंगे। जैसे आज 3 बजे लेक्चर था, तो जिस बच्चे ने 2:55 के बाद क्लिक किया होगा तो वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सका होगा। और अटेंडेंस कैलकुलेट करेगा जूम, लिंक भी भेज दिया जाएगा आपको। इसके अलावा यस, इसके अलावा बेटा हम जो भी लेक्चर हुआ करेगा उसकी क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है, लाइव रिकॉर्डिंग होती है, और एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आप सबके साथ एक लिंक शेयर करूंगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सारे का सारा लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं। बट ये आपके पास 2 से 3 दिन की विंडो होगी, आप चाहे तो डाउनलोड कर लें उस लेक्चर को या उसको आप लाइव देख लें लिंक पे क्लिक करके, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जिनका नेट ऊपर नीचे हो, प्लस माइनस हो, जो बच्चा जो है किसी का नेट स्लो होता है, नेट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो बाद में भी लेक्चर को वो डाउनलोड भी कर सकता है, उसको देख भी सकता है, हम ये आपको ऑप्शन भी देंगे। इसके अलावा बेटा जूम से रिलेटेड, ठीक है, हाउ टू अटेंड सेशन बेटा मैंने बता दिया आपको। एक चीज सेंटर में मैंने बोल्ड की हुई है, मैंने आपसे शेयर भी की थी। डू नॉट फॉरगेट टू मेक योर अकाउंट ऑन जूम, साइन अप ऑन जूम एंड मेक योर अकाउंट विद योर ईमेल। आज तो मैंने ये सेटिंग नहीं लगाई, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से, कल से, जिस बच्चे का जूम पे पर्सनल अकाउंट नहीं होगा तो वो बच्चा कल से लेक्चर अटेंड नहीं कर सकेगा। इस सिक्योरिटी रीजन के लिए, ताकि हम आउटसाइडर्स और एलियंस को ट्रेस कर सकें। अगर बेटा आपका ईमेल के थ्रू जूम पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप लेक्चर अटेंड नहीं कर सकेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप जूम पे अपना साइन अप कर लें। नहीं आता तो आप यूट्यूब में जाके लिखें हाउ टू साइन अप ऑन जूम, पूरी शॉर्ट सी वीडियो आएगी, उसको फॉलो करें और अपना अकाउंट जनरेट करें। बेटा नेम फॉर्मेट ऑन एडमोडो एंड जूम एंड इवन ऑन योर नॉट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, उसको रहने दें आप। एडमोडो और जूम के ऊपर बेटा ये सेंटर में देखें, एक मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है,
असलम खान, अकरम खान एंड आयशा खान, ये बस आर्बिट्रेरी सही है। तो बेटा आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने डैश देनी है, फिर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। बेशक इसमें कोई स्पेस नहीं देनी है आपने, सिंपली राइट योर रोल नंबर, देन गिव डैश, देन राइट योर कंप्लीट रजिस्टर्ड नेम, जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे नेम है। बिकॉज इसी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली आपकी जो, एक बार रजिस्ट्रेशन में कर दूंगा जूम और एडमोडो पे, उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी असेसमेंट को और आपके सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ कर दी तो एंड पे आपका रिजल्ट तो बना होगा, लेकिन उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया बेटा तो फिर उसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। तो आपने पहले दिन से ही अपना नेम और रोल नंबर एज पर दिस फॉर्मेट आपने खुद ही जनरेट करना है। अगर आपको नहीं आता कि हाउ टू चेंज द प्रोफाइल नेम ऑन एडमोडो एंड जूम, वंस अगेन बेटा यूट्यूब पे जाएं, वहां पे आप टाइप करें हाउ टू चेंज द प्रोफाइल नेम ऑन एडमोडो, हाउ टू चेंज द प्रोफाइल नेम ऑन जूम। शॉर्ट सी वीडियोस आएंगी 5-5 मिनट की, उनको आप देखें, फॉलो करें एंड चेंज योर प्रोफाइल नेम ऑन दीज टू फोरम्स एज पर द फॉर्मेट विच हैज बीन शेयर्ड विद यू पीपल। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हमारी जनरेशन ना तो पढ़ना चाहती है और ना हमारे पढ़ाने वाले टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, ये तो सीधी सी बात है। ये तो मैं समझता हूँ बेटा, आपका पेन मैं समझता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा बहाना जो आप मुझे दोगे ना बेटा, वो है जी सर हमारे तो घर है ही पहाड़ों में, तो मैं तो रहता ही जंगल में हूँ, इंटरनेट का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। तो बेटा मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और मैं कभी आपकी बात से काउंटर आर्गू नहीं करूंगा, उसको काउंटर भी नहीं करूंगा कि आप गलत कह रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि जी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और झूठ का तो आप से बंदा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। तो यस, वी हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज इन सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जांपल इन फाटा, इन सम एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, इन सम एरियाज ऑफ पंजाब आल्सो हैं इश्यूज बेटा, हैं बिल्कुल हैं। तो फिर क्या हमारी पॉलिसी होगी? जो बच्चा मुझे ये कहता है कि सर मैं तो अटेंड ही नहीं कर सकता, आज भी मैं देखूं तो इस वक्त हमारे पास बेटा 77 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो क्या कहते हैं जी, बाकी लोग मिसिंग हैं। उनसे जब पूछेंगे बेटा आप आज क्यों नहीं थे इसमें ओरिएंटेशन क्लास में, सर हमारा नेट ही कोई नहीं, सर लाइट ही कोई नहीं हमारे पास, तो हमारे पास यूपीएससी को नहीं, गरीब से लोग हैं हम तो बेटा मैं बिल्कुल मानूंगा आपकी बात। तो फिर ये बेटा इसका हल क्या है? इसके मेरे पास बेटा हल है। सबसे पहला हम आपको बेटा जो ऑप्शन देंगे, if you cannot attend the online sessions or you do not want to attend online sessions, what are the alternatives? बेटा सबसे पहला अल्टरनेटिव, वॉच प्लेबैक एंड सबमिट द रिफ्लेक्शन। ये जो हमारे पास लेक्चर होगा उसकी बेटा एक रिकॉर्डिंग होती है सैटेलाइट पे, क्लाउड में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और मैं सारी की सारी वीडियोस को यूट्यूब चैनल बना के उस पर भी डाल दूंगा, आप यूट्यूब पे देख लेना। लेकिन उसको देखने के बाद फिर आपने करना ये होगा बेटा कि आपने ना 3 पेज की समरी बनानी होगी उस सारे सेशन की। लेट्स सपोज आपका लेक्चर होता है जी ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, आपने मिस कर दिया, घर में नेट नहीं था, लाइट नहीं थी, कोई बात नहीं बेटा, जब आपका लेक्चर शेयर किया जाएगा तो आपने लेक्चर को देखना अच्छी तरह, और 3 पेज की हैंड रिटन आपने वहाँ पे असाइनमेंट बनानी है एक, और उसको आपने डायरेक्ट सबमिट करवाना है मेरे पास, डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो और वो असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन, ठीक है, उस पर रोल नंबर मेंशन्ड हो और टाइप की हुई ना हो, ठीक है, हैंड रिटन होना चाहिए। तो उस पूरे लेक्चर की आपने एक रिफ्लेक्शन, एक समरी बना के एटलीस्ट मिनिमम 3 पेज की हो, मैक्सिमम बेशक आप 100 पेज की लिख लें, डजंट मैटर। तो ये आपके पास एक मैं आपको एक चैनल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास नेट के इश्यूज हैं या आप नहीं अटेंड कर सकते तो आप इस तरह करेंगे। और सब बच्चों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट का इश्यू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज शादी थी या आज आंख नहीं खुली या कहीं जाना था तो आज लेक्चर अटेंड नहीं किया, चल कोई बात नहीं, संडे को बैठ के असाइनमेंट बना के सर को दे देंगे, अटेंडेंस लगवा लेंगे, बेटा ऐसा नहीं होगा। जो ये ऑप्शन यूज करेंगे फिर वो खाली यही ऑप्शन ही यूज करेंगे, वो हर बार हर लेक्चर की असाइनमेंट देंगे, ठीक है। अच्छा आप ये नहीं कर सकते, आप कहते हैं सर नेट ही कोई नहीं, जब नेट ही कोई नहीं तो फिर हम यूट्यूब पे या बाद में लिंक पे क्लिक करके हम कैसे लेक्चर को देख सकते हैं? अगर नेट हो तो फिर हम आपका लेक्चर लाइव ना देख लिया करें। वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप। इसका क्या हमारे पास ऑप्शन है बेटा, देन यू विल सबमिट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफिस, उसको मैं फॉरवर्ड करूंगा, रेकमेंड भी करूंगा, एंड वी विल गिव स्पेशल परमिशन टू यू
टू दैट पर्सन कि आप बेटा हॉस्टल में आके शिफ्ट हो जाए। आई विल पर्सनली टॉक विद द प्रिंसिपल साहब, तो ये काम आपका मैं करा दूंगा इंशाल्लाह कि वो स्पेशल बच्चा। बट ये है कि हम पहले वेरीफाई करेंगे आपके डोमिसाइल से, आपके एड्रेस से, आपके लोकेशन से कि वाकई आपके यहाँ नेट के इश्यूज हैं, तो ही हम आपको अलाउ करेंगे। पता चले पूरी क्लास हॉस्टल में आके बैठी हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली 10% स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली अफेक्टेड होंगे उनको हम अलाउ करेंगे, वो भी स्ट्रिक्ट एसओपीज के साथ, ठीक है, खुला नहीं छोड़ देंगे। ये भी आप नहीं चाहते कि सर मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हॉस्टल में कोरोना है, अम्मी अबू मना करते हैं, अम्मी कहते हैं बेटा कोरोना हो जाएगा ना, नहीं जाना, तो ना हो बेटा, कोई बात नहीं, घर पे बैठो, रिलैक्स करो। देन वी विल गिव यू थर्ड ऑप्शन, क्विज अगेंस्ट ईच लेक्चर। बेटा आप फिर कंप्लीट चिल मारो, जब कभी भी आप कॉलेज में आओ, जब कभी भी आप आओ, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जितने लेक्चर्स हो गए हों, तो आपने हर लेक्चर का एक क्विज देना होगा, या उसको मैं वाइवा भी कर सकता हूँ, और वो आपने डायरेक्ट भाई को देना होगा, मुझे देना होगा, ठीक है बेटा। ये सबसे आसान है। आपकी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं 3 महीने, आप 3 महीने कोई क्लास ना लें, आपकी कोई अटेंडेंस भी नहीं होगी बेटा, लेकिन वो अटेंडेंस एब्सेंट ही काउंट होगी जब तक कि आप उन 3 महीने के हर लेक्चर का वाइवा नहीं दे देते। लेक्चर जो भी था उस टॉपिक की तैयारी करेंगे आप उसका बेटा वाइवा देंगे या क्विज देंगे, अगर वो पास होगा तो आपकी वो अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। सो बेटा दीज आर योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू फिक्सचर्स। आप इस इन 3 ऑप्शन में से जो भी चूज करना चाहें, आपकी बेटा मर्जी है, या आप वही जो यूनिफॉर्म है कि मेरे साथ बैठ के आधा घंटा 45 मिनट जब जब आपकी क्लास होगी थोड़ा बहुत सुन लिया करो, क्या फर्क पड़ता है बेटा। लेक्चर्स होंगे बेटा हमारे, प्रैक्टिकल्स भी होंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल हमारे 2 तरह के होंगे, एक फार्मेसी के होंगे, कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल होंगे। वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इंशाल्लाह, यू विल एंजॉय एंड यू विल लाइक दिस। ट्यूटोरियल्स बेटा हमारे होंगे, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं होते, लास्ट टाइम तो खास नहीं हो सके। उसमें हम आपसे 4 तरह से इंटरेक्ट करते हैं, पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एसटीडी स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, सीबीएल केस बेस्ड लर्निंग, एंड टीबीएल team based learning. So these are latest methodologies inshallah we will practice if we will get a chance to interact on campus. Then we will give you periodic assignments, महीने में 2 3 4 2 3 इतनी असाइनमेंट्स आपको देंगे। आपने शॉर्ट सी असाइनमेंट बनानी होगी, उसको आपने राइट करना होगा, और राइट अप करके आपने एडमोडो पे सबमिट करवानी होगी, उनकी उन सबकी पिक्चर्स लेके। वी विल गाइड यू इंशाल्लाह, उसके मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। यस एक्स्ट्रा क्लासेस, अब बच्चे आएंगे जी सप्ली के बाद, सर हम हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस कर, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, सप्ली आ गई तो हमने तौबा कर ली कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बार सप्ली नहीं लेंगे हम, तो उसके लिए सर हमें आपका फेवर चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासें ले लें और उसमें हम कुछ पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अटेंडेंस भी बेटा इम्प्रूव सर इम्प्रूव कर लेंगे हम उसमें। तो बेटा एज फॉर एज एक्स्ट्रा क्लासेस आर कंसर्न, सो आवर पॉलिसी इज सिंपली नो, there is no policy for extra classes, there will be no retake of any lecture, there will be no retake of any attendance। एक बार जो लेक्चर हो गया, जो अटेंडेंस लगी बेटा वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। so please keep these things in your mind। what are the recommended books बेटा, जो यूएचएस रेकमेंड करती है अपने सिलेबस के अंदर, दैट इज बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय, टॉप पे लिखा हुआ है बर्ट्रैम जी कैटसन, इसको बिग कैटसन भी लोग कहते हैं। मेरे ख्याल से अभी इसका 14th एडिशन चल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम आता बिग कैटसन में से ही है, ठीक है, लेकिन बच्चे प्रेफर करते हैं इस मिनी कैटसन को। अब दिस इज, अब इस पढ़े लिखे यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड बोर्ड रिव्यू, दिस इज रिव्यू बुक, दिस इज नॉट द बेटा टेक्स्ट बुक। तो आप अगर एट द एंड ऑफ डे ये क्लेम करते हैं कि जी मिनी में नहीं था, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज दिस इज रिव्यू बुक, दिस इज रिव्यू ऑफ बिग कैट्स, स्टैंडर्ड बुक बिग कैट्स देंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चन कि सर क्या पढ़ें, तो बेटा आपने पढ़नी तो मिनी कैट्स ही है, ठीक है, क्योंकि बिग कैट्स बहुत ज्यादा है, वो नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ लेंगे तो उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मिनी आपने अकेले नहीं पढ़नी बेटा, मिनी के साथ आपने सारे लेक्चर्स जो हम देंगे उनको आपने इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज वी प्रिपेयर लेक्चर फ्रॉम द बिग कैटजिंग एंड गुडमैन गिलमैन फार्माकोलॉजी। तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स जो मिनी में नहीं होंगे लेकिन बिग में होंगे, वो हम इंशाल्लाह एडअप कर देंगे। तो लेक्चर्स आप सुनते रहें, मिनी पढ़ते रहें, और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे आराम से, बल्कि बहुत अच्छे नंबर लेंगे, डिस्टिंक्शन भी ले जाएंगे इंशाल्लाह। प्लीज डू नॉट रीड दिस बुक लिपिन कॉन,
आई डू नॉट नो बच्चों में ये क्यों फेवरेट है, शायद इसकी राइटिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है, इजी लिखी हुई है, आई डू नॉट नो, इसकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी है, जो भी रीजन है बेटा, इसको नहीं पढ़ना आपने, इसको नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ एक चैप्टर करना है, वो मैं बता दूंगा और उसके नोट्स भी आपको इसमें से कट करके दे दूंगा, बट आपने एज अ टेक्स्ट बुक डिपिन कोड नहीं पढ़नी। ये पढ़ोगे बेटा तो क्विज में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, आपके टेस्ट अच्छे क्लियर नहीं होंगे, टर्म पास नहीं कर सकोगे, आपके असेसमेंट भी खराब होगी, प्रॉफ में भी आपको डिस्टर्बेंस होगी, ये तो आपने बिल्कुल परचेज भी नहीं करनी। ओके बेटा, इन द लास्ट आई बिलीव इन द गिव एंड टेक पॉलिसी। व्हाट इज दैट पॉलिसी? बेटा सबसे पहले गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, ठीक है बेटा, आप रिस्पेक्ट दो, हम भी देंगे, बहुत ज्यादा देंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है। सेकंड पॉलिसी इज गिव डेबिट हैव डेबिट। बेटा वी नीड योर अटेंशन, हम चाहते हैं कि आप रेगुलरली और इन अ वेरी पंक्चुअल वे हमारे पास आके बैठें, पढ़ें, इंटरेक्ट करें। आप हमें पे अटेंशन दोगे बेटा तो हम भी आपको अपनी अटेंशन देंगे इन अ गुड वे, ठीक है। अब दूसरा, गिव क्रेडिट हैव क्रेडिट। यस बेटा, आप हमें क्रेडिट दो। मैं आपसे क्या चाहता हूँ? पैसे? नो, मैं आपसे पैसे नहीं चाहता बेटा, मैं आपका टाइम चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, क्विज में अच्छा परफॉर्म करो, और जो उसके आप नंबर अर्न करते हो अपने टेस्ट में, टर्म में, स्टैंड अप में, गिव दोज नंबर्स टू मी, वो आप मुझे दे दो, and in turn I will give you credit in your internal assessment and in your final professional viva। आपको शायद पता ही हो, पर्सनली मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि वाइवा के अंदर जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के, वो तो सिंपली अटेंडेंस लगाने ही आते हैं। मैं उनसे कुछ पूछ भी लेता हूँ तो वो बहुत अच्छा बताते हैं। एक बच्चा है मेरे पास, तो नाम नहीं लूंगा उसका मैं अभी, आके बैठा, उसने अटेंडेंस मार्क की, कहता सर मैंने वाइवा नहीं देना आपको। मैंने अभी क्यों नहीं देना भाई? कह सर आपने खुद ही कहा था कि अगर टॉप 30 में है तो वाइवा नहीं देना। अच्छा दिखाओ जी, उसका चेक किया तो वो टॉप 10 में था। मैं कहा ठीक है भाई ना दी जा। कहता सर आपने कहा था गिव क्रेडिट हैव क्रेडिट। मैं कहा जी कहा था। कहते मुझे चाय पिलाएं। मैं कहा यार वाइवा चल रहा है, खौफे खुदा आकर बाद में पी नहीं। कहता ना सर मैंने चाय पीनी है, और वो चाय पी के गया, बदतमीज, मेरा इतना खर्चा करा दिया उसने। तो बेटा गिव मी क्रेडिट एंड यू कैन रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ ईयर ड्यूरिंग वाइवा कि सर प्लीज रिटर्न माय क्रेडिट। तो आप अच्छा पढ़ो बेटा, अच्छा परफॉर्म करो। अगर आपको प्रॉफ का वाइवा से डर लगता है तो ना दो वाइवा। कौन कहता है भाई वाइवा दो? आप सीधा सीधा मुझे सारा साल वाइवा दो ना, सारा साल पढ़ते रहो, सारा साल अच्छा परफॉर्म करो, अटेंडेंस अच्छी रखो, टेस्ट सारे पास करो, क्विज में अच्छा स्कोर करो, एंड पे आके आप लिफ्ट ना करो बेशक, मुझे डजंट मैटर। मैं बड़ा खुश हूँ अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं टॉप 10 में हूँ, मुझे खुशी होगी ये सुन के, ठीक है। तो simple is that, give and take policy। And in the last, please do not give me surprises। if you will give me a surprise I will also give you a surprise। तो ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अवॉइड सरप्राइजेस ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है। For any feedback, complaints, and suggestions, you can contact me at these two forums. You can email me or you can directly message me। And टेम्परिंग एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, बच्चों की बड़ी आदत होती है कि जी पेपर में जो है टेम्परिंग करना, पेपर निकलवा लेना, टर्म का पेपर निकलवा लिया। वैसे ऐसा होता नहीं है, मतलब अब मैं काफी स्ट्रिक्ट हूँ। मेरी पॉलिसी ये होती है कि जब भी क्लास टेस्ट होता है ऑन कैंपस या टर्म होती है तो उसी दिन पेपर प्रिंट होता है, और टर्म या स्टैंड अप स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले फोटोकॉपी होती है। तो टेम्परिंग का चांस वैसे बेटा मिनिमल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा शार्प होते हैं, क्लेवर होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो मैं तो नहीं जीत सकता टेम्परिंग में बच्चों से, सीधी सी बात है। लेकिन बेटा अगर आप टेम्परिंग करते पकड़े गए तो बेटा फिर रोना नहीं, सोच में कि टेम्परिंग करनी है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेम्परिंग। आप अटेंडेंस में गड़बड़ी करते हो, आप चीटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, करे जाओ बेटा। लेकिन बेटा जब पकड़े गए तो फिर आई विल सी व्हाट सरप्राइज शुड आई ब्रेक। तो क्लास कैंसलेशन पॉलिसी, बेटा क्लास कैंसलेशन शुड बी इन्फॉर्म बिफोर हैंड, और अगर प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं है तो क्लास कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रख लो। बेटा रैगिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने जूनियर्स की कैंपस पे। रीजन रीजन बेटा ये है कि मैं जो है कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर हूँ। अगर मेरे पास बेटा कंप्लेंट आ गई
फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेटा कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अगर कंप्लेंट आ गई फिर देखेंगे क्या करना है, फिलहाल छोड़ते हैं इसको। Okay, so far you must have been very much confused, but I feel you. Let's feel each other. मुझे अब तक आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगा होगा, पता नहीं यार ये क्या बंदा है, ये क्या कर रहा है, इतने रूल्स, इतनी इतनी ज्यादा पाबंदियां और इतना सारा कुछ। तो बेटा ये जो सारे रूल्स हैं ये बाय द बुक रूल्स हैं। अच्छा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारा कुछ, इतनी एफर्ट करना। अब देखो इतनी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एफर्ट भी बहुत करनी पड़ती है ना। मेरे लिए बहुत सिंपल है बेटा कि मैं आऊं, चुप करके स्लाइड लगाऊं, रीड करके चला जाऊं। इतने रूल्स बनाने, इतने फोरम्स को इन्वॉल्व करना, इसमें मेरी बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन क्यों करता हूँ? फॉर योर बेटरमेंट। जो G7 थी बेटा, उसका जो रिजल्ट था दैट वाज 94%। मतलब 100 में से हमारे सिर्फ 6 बच्चे फेल थे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। जो क्लास है G7 उसकी बात कर रहा हूँ, जो अभी इस वक्त फाइनल ईयर में शिफ्ट होगी। बेटा जब उनका रिजल्ट आया था ना, ऑल ओवर द पंजाब जो रिजल्ट था वो 67% था। इवन निश्तर का 68% रिजल्ट था। मतलब निश्तर का 68% रिजल्ट था, हमारा रिजल्ट 94% था। और बेटा पूरे पंजाब में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सारे कॉलेजेस मिला के 42 बनते थे तब, अब शायद 3-4 ऐड हो गए हैं। बेटा अमंग 42 आवर पोजीशन वाज, याद नहीं है, थर्ड या फोर्थ, बेटा चल फोर्थ लगा लो। ठीक है, पूरे पंजाब में हमारा फार्माकोलॉजी का जो रिजल्ट था एंड ओवरऑल थर्ड ईयर का जो रिजल्ट था दैट वाज टॉप 4। हमारा कॉलेज टॉप 4 में था इन द यूएचएस लिस्ट। बेटा ये हमारे लिए अचीवमेंट नहीं है, ठीक है, कि हम इतने हाई लेवल पे आ गए। उसके लिए बेटा मेहनत की थी, मेहनत यही की थी बेटा, कुछ पॉलिसीज बनाई थी, कुछ रूल्स बनाए थे और उनको इम्प्लीमेंट किया था, जिससे बच्चों ने सारा साल मेहनत की और अच्छा रिजल्ट आ गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल जो G8 की क्लास है, आई एम एक्सपेक्टिंग 96-97% रिजल्ट एंड आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10 डिस्टिंक्शन इन फार्माकोलॉजी। तो दुआ कीजिएगा अपने सीनियर्स के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी। वी हैव वर्कड वेरी हार्ड एंड वी हैव वर्कड इन वेरी ऑड वे। कोरोना था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन स्टार्ट करना था, अब तो हम काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो गए बेटा, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी डिफिकल्टीज भी आई, बट वी केप्ट ऑन लर्निंग। अल्लाह ने बड़ी मदद की हमारी और काफ़ी अच्छा रहा हमारा साल। वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट so far. If you have any question you can ask me. कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, मैं आपका एक सेकंड माइक का जो ऑप्शन है ना उसको मैं